Welcome. Thank you, sir. Sir, welcome. Please go with that. उसे हम पढ़ जाएंगे और उसे महंगा गुलाब और उसे SRMB to settle down, take your seats. थोड़े से मिनट में, a few minutes we will start, but settle down, take your seats, and if you may. कहते हैं ना कि हर मनुष्य के अंदर अनाहत चक्र, हृदय चक्र में दैवी चेतना और प्रकाश का वास है. In our hearts there is divine light and love, and according to Indian tradition, when we say February में आप पहुंचे, very happy new year. चलेगा? Should I do that? Happy New Year to all of you, ladies and gentlemen. और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वर्षनव हर्षनव जीवन प्रीति नवल, जीवन की प्रीति नवल, जीवन की जीत नवल. I wish you all a very very happy 2023, and may we begin this new journey with the renewed spirit of collaboration. एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. So, SRMB dreamt a dream and scaled many a mountain to reach here today, where we are. Today we are a force to reckon with in the world of steel in India. और हम मिलकर राष्ट्र निर्माण करेंगे और अमृत काल के भारत का निर्माण करेंगे. With that, I welcome you all once again, and I'd like to now invite on stage to open this evening a man who I have been told is a people's leader. In my opinion, the finest leaders are those who know the way, who go the way, and most importantly, who show the way. He's one such Pankaj also. Ladies and gentlemen, let's hope he begins this evening with the same energy. Please put your hands together. Round of applause. A warm one for Shri Ashish Beriwala, Director. Good evening. Thank you, please. A bit more than what is the reality. Good evening and welcome, ladies and gentlemen. Thank you so much for sparing your valuable time on a working Monday. Best corporate construction companies headquartered in Mumbai, be it Afcons, be it L&T, be it KEC, Shapurji, Palunji, Cayman India. So a lot of the which are in the last 5 months crossed 30 stores, and we hope to cross 50 by this year. So it has been an evolving journey. Because of the patronage of our valued customers, to continue this journey. Once again, thank you for your valued time. I would not be standing between the main event today and would again, give the mic back. Okay.
Okay, so I am excited, ladies and gentlemen. First, I'm going to request you, Ashish, to welcome a very special guest in our midst. A man who needs no introduction, but I will do the honors. Pankaj Tripathi, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की शाम में. We'd like to welcome you with a bouquet of flowers. बहुत-बहुत स्वागत है. अब मैं इनको दे देता हूँ. That's perfect. ऐसे भी कल Valentine's Day तो कल का काम आज ही होगा. Together are real bundles of energy. Really? I mean it. अच्छा. Yes. आशीष जी कह रहे हैं both of us together are the real bundle of energy. And man should also speak few words. Oh no, please. Of course, I will get her after I've spoken to Pankaj. I will get her to speak. Thing is to be done right. To him? That's your order? Yes, and I Okay. accept the flag. Thank you so much. Thank you so much for coming, ma'am. Please, Betty. If he's given a small role or a big role, an unimportant role or an important role, the impact that he leaves through his glad to have him as a member of our family. Pankaj, very warm welcome. आइए हम बात करते हैं. Please come. लोग सब आए हैं यहाँ, तो सबका स्वागत है. नमस्ते. कैसे किया इनोवेशन में बहुत को लेकर कि ट्रस्ट और कन्विक्शन कितना जरूरी है हमारे जीवन में और हमारी कला में और हमारे पेशा में, काम में. मैं सो भी सकता था. सुबह मुझे शूट पे जाना था. आज हम दिन भर शूट कर रहे थे कपिल सर के साथ और महेंद्र माही जी के साथ. तो मैं ट्रस्ट और इनोवेशन पे, कन्विक्शन पे सोच रहा था जी. कि वो कितना बड़ा खेल है और उसका जीवन में और एक्टिंग में कैसे हम इस्तेमाल करते हैं. तो वही इनोवेशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सोचना पड़ता है. दिखने में भले अभिनय आसान लगे, अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि तुम जब करते हो तो लगता है एक्टिंग बहुत आसान होता है. हाँ, तो एफर्टलेस दिखने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है. बिल्कुल. कि वो एफर्टलेस दिखे. तो यही है, बस मेहनत है, ईमानदारी है. मुझे तो आदत नहीं है ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोगों के सामने बोलने की. वैसे मैं बता दूं, पहली बार मैं किसी ऐसे कार्यक्रम में आया हूँ. इसके पहले कभी नहीं आया हूँ. तो मुझे प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं कहीं मेरा टंग स्लिप हो जाए, कुछ और बोल दूं तो मुझे माफ करिएगा. अरे बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट आप जैसे जो कलाकार हैं, आप जैसे कलाकार हर ऐसी सभा में आपको जाना चाहिए और अपनी कहानी आपको बतानी चाहिए. बिकॉज यू हैव एन इनक्रेडिबल स्टोरी पंकज. हम लोग सब जब एक करियर को अप्रोच करते हैं, और आपका करियर इतना कॉम्पिटिटिव फील्ड है, एंड यू नो गुड रोल्स आर हार्ड टू कम बाय, मनी इज हार्ड टू कम बाय, अपॉर्चुनिटीज आर हार्ड टू कम बाय, कार्टल्स हैं, माफियाज हैं, इन्फ्लुएंसेस हैं. उस सबके बीच में आप खड़े हैं दृढ़ निश्चय लेकर कि मैं वही करूंगा जो एक ऑनेस्ट कलाकार करता है, और उसमें मुझे जितना भी समय लगे, जितनी भी मुझे मेहनत परिश्रम करनी पड़े, मैं करूंगा. दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग पंकज. दिस इज ट्रूली leadership through innovation and standing by your core values. हमारे जो core values हैं वो है perfection, integrity, commitment. देखिए ना कितना coincidence है. He symbolizes all three of them: commitment, perfection and integrity. जी बिल्कुल. तो वो वही है कि ये मेरे जीवन में मैं सिर्फ सिनेमा को चुनने के लिए नहीं, मुझे किस ब्रांड से एसोसिएट होना है, जुड़ना है, उसमें भी मैं बहुत सोचता हूँ, बहुत करता हूँ. बहुत बड़ा पैसा अगर आपको ऑफर करा जाए फ्रॉम अ ब्रांड दैट यू डोंट आइडेंटिफाई, बहुत ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं. हाँ, मैं विनम्रता पूर्वक मना कर देता हूँ. तो क्योंकि मेरे को लगता है कि यार वो क्या है ना, जो ऑडियंस का ट्रस्ट मिलता है ना, बहुत मेहनत ईमानदारी के बाद, वो लगता है कि वो बड़ी जिम्मेदारी है. तो मेरा ब्रांड एसोसिएशन भी वैसा हो जो मेरे वैल्यू को या मेरे विचार को रिफ्लेक्ट करता हो. तो मतलब SRMB सिर्फ मजबूत इमारत नहीं बनाता है, मजबूत व्यक्तित्व भी होना चाहिए. जी. और हम लोग अक्सर ये पढ़ते हैं कि एक्टर की क्या जिम्मेदारी होती है, फिल्म मेकर की क्या जिम्मेदारी होती है. आप उसका जिक्र चाहते हैं. एक स्वरूप है, एक एग्जाम्पल है. इट इज kudos to you. Really put your hands together for someone who's so careful about the choices he makes in his life. पंकज जी, SRMB के ऐसे कौन से ब्रांड वैल्यूज हैं जिनको देखकर आपने परखा होगा, सोचा होगा, पढ़ा होगा, पूछा होगा? वो कौन से ऐसे ब्रांड वैल्यूज हैं जिनसे आप आकर्षित हुए एंड यू डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली? सब कुछ, मतलब कमिटमेंट, इनोवेशन, जिस जो क्वालिटी होती है. मैं मतलब कोलकाता से लेकर दुर्गापुर तक मैं जुड़ने का पहले खुद भी किया था होमवर्क.
प्लस मुझे मेरे लिए था कि कपिल सर और महेंद्र सिंह धोनी भाई ये दोनों जुड़े हुए हैं। हाँ। मैं तो फिर तो क्योंकि दोनों उसी प्रकार के व्यक्तित्व हैं जी बिल्कुल सही कहा। जो अपने अपने खेल के क्षेत्र में, मैं 83 करते वक्त मुझे मौका मिला 83 फिल्म की शूटिंग के दरमियान कि कपिल सर के साथ हम काफी रहे। धर्मशाला में एक वर्कशॉप की, वहां रहे। फिर जब यूरोप में शूटिंग कर रहे थे जहां उन्होंने 170 पारी खेली थी टनब्रिज वेल्स में, वहां भी रहे। तो वो वही इनोवेशन जो एक अवेयरनेस है अपने मतलब ट्रस्ट को लेके, प्रोडक्ट को लेके, तो ये सारा होमवर्क करके अपने स्तर से उसके बाद मुझे लगा बिल्कुल। और तब आप कन्विंस हुए? मेरे हाँ जी बिल्कुल। अरे नॉर्मली पता है पंकज जी, आपको तो पता ही होगा कि जब एक्टर्स आते हैं, स्टार्स आते हैं, तो मतलब ऑनट्रॉश पहले आता है, फिर स्पीकर्स बजते हैं, अनाउंसमेंट होता है। आप नहीं, इतने हुआ कूल क्या हैं। कि हम लोग एक दिन कोलकाता में, टोनी दा एक डायरेक्टर हैं, अनिरुद्ध राय चौधरी जो पिंक बनाए थे, हाँ। उनकी फिल्म कर रहे थे। हाँ। तो एक सीन हमारा करते करते उनका अचानक शाम होते होते बोले वो सीन यहाँ नहीं करेंगे, वो सीन किसी दूसरी गली में करेंगे। तो बोले दूसरे दिन एक गली मिल गई है वहां करेंगे, हमको प्रोडक्शन के लोग ले गए। मैं जब वो पतली गली थी, वैन हमारी कहीं बाहर, हम लोग रेडी होके गए तो मैं देखा वहां SRBM हाउस लिखा हुआ है। तो मैं अपनी टीम वालों को बोला यार SRBM हाउस लगता है SRBM का दफ्तर है ये। तो बोले नहीं नहीं सर, SRBM से बना हुआ हाउस है। मैं बोला तो SRBM सरिया से बने हाउस पे क्यों लिख देगा SRBM हाउस, दफ्तर होगा, पता करो। तो लोग पता करे, दफ्तर है। तो मैं पूछा आशीष जी हैं क्या, जयदीप हैं क्या? बोला है। मैं बोला बस ये शॉट खत्म करके कॉफी पीने आ रहा हूं मैं। तो वो हमें भी 2 मिनट पहले तक पता नहीं था कि हम वहां उस SRBM के दफ्तर के हेड ऑफिस के बाहर रहेंगे। ये यूनिवर्स के सिग्नल्स होते हैं। हाँ, वो पंकज जी। प्लानिंग थी, तैयारी थी। फिर हम लोग गए, कॉफी पिए, बात किए, हमारे प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर थे, सब गए। ऊपर जाके दफ्तर में हम लोग बैठे। ये जो अगला सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ, ये हमने स्क्रिप्ट नहीं किया था, पर ये मेरा मन कर रहा है मैं पूछूं। आप इतने रियल कैसे हैं? ही इज रियल। पेड़ पौधा रियल Authentic. कैसे होता है, ये सवाल आप पूछ सकती हैं किसी पौधे से, तुम रियल कैसे हो? शायद इसलिए क्योंकि वो जैसे ह्यूमंस नहीं इस पे हैं। शंका हो सकता है कि ये फैक्ट्री की बनी हुई चीज है तो ये रियल है नहीं है। लेकिन हम व्यक्ति तो ईश्वरीय फैक्ट्री के बने लोग हैं। यस। तो जैसे एक पेड़ पौधा रियल होता है उतना रियल मैं भी हूँ। तो मुझे कुछ हालांकि मेरा पेशा जो है, मेरा काम जो है वो झूठ का है। जी। सिनेमा प्रोजेक्शन का है। हम सब लोग, एक राइटर दिमाग में सोचता है और एक 100 पन्ने की कागज पे लिखी हुई स्क्रिप्ट लेके जाते हैं और सब नकली होते हैं, माँ बहन भाई प्रेमिका प्रेमी, वो घटनाएं, और फिर हम लोगों को हंसाते हैं, रुलाते हैं, उस कहानी में इन्वॉल्व कर देते हैं। तो काम हमारा झूठ का है और उस झूठ के काम को करने के लिए मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सच्चा होने की जरूरत है। बहुत सारे तालियां हो जाए। आई थिंक दिस इज द मेरा ये सवाल है कि आप इतना सहज हो, रियल हो, डाउन टू अर्थ, ये भी प्रवचन भी तो ऐसा कॉन्ट्रास्टिंग रोल्स कैसे किया आपने मिर्जापुर में और जी गुड़गांव में, या और भी वहाँ थोड़ी क्राफ्ट और एक्टिंग की जरूरत पड़ी क्योंकि वहाँ मेरे अंदर के एलिमेंट नहीं थे। मैं जीवन में किसी को नहीं डरा सकता हूँ और मैं जीवन में मतलब किसी का हित नहीं चाहता हूँ, लेकिन किरदार चाहते हैं। कालीन भैया डराते हैं, तो वहाँ पे मुझे एक्टिंग, वो क्राफ्ट जो है थिएटर से सीखे हैं, उसका इस्तेमाल करना पड़ा। मुझे हमेशा जीवन में हारे हुए लोग अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि इसको ज्यादा सहानुभूति की जरूरत है, ये हार गया है। जो जीत गए हैं उसका दोस्त तो हर कोई बनता है, हारे का दोस्त कोई नहीं बनता है। तो उन किरदारों के लिए मुझे एक्टिंग की जरूरत पड़ती है, चाहे मिर्जापुर हो या गुड़गांव हो, क्योंकि वो मेरे रेफरेंस से दूर के रोल हैं। वसेपुर हो जी, वसेपुर तो मतलब नाइटमेयर था मेरे लिए, बाप रे। अब आप मुझसे मिलेंगे तो भ्रम टूटेगा कि ये व्यक्ति कैसे उतना क्रूएल ब्रूटल हो सकता है। तो मुझे सपने आते थे आफ्टर वसेपुर कई दिनों तक उसके। आपको ही झूठ करता जी। थैंक यू सर फॉर योर क्वेश्चन। बहुत सारा पैनिक हो रहा है वहां पे, इसलिए मैं मैं बतौर एक्टर बहुत अवेयर रहता हूँ
Okay. कि मेरे आसपास क्या घटित हो रहा है। एक इंस्टेंट आया आपके पूछने पे प्रोसेस में, तो उसमें हाँ जी। बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसमें ट्रस्ट है, कन्विक्शन आप है, बोलिए ना, वी हैव टाइम, क्राफ्ट हम है। सुनना चाहेंगे। नहीं, मेरे पास समय कम है, मेरी रात की फ्लाइट है। तो वैसे मैं इस पे बोलना शुरू करूं तो बहुत इंटरेस्टिंग भी हो सकती है बातचीत और बहुत बोरिंग भी हो सकती है, क्योंकि और खतरा भी है बताने का, क्योंकि आपको जितना जादू देखने में मजा आता है, जादू के प्रोसेस में उतना मजा नहीं आएगा। तो हम वो जादूगर हैं कि रुमाल और कबूतर दोनों हमारे पास है। वक्त आने पे कबूतर को रुमाल बना देंगे और फिर वक्त आने पे रुमाल को कबूतर बना देंगे। लेकिन ये हम बताएंगे नहीं कि वो किधर है। पर हम तो परिवार लोग हैं, आप बताओ, हमें 2 मिनट में बता दो बस। We'll make sure you catch your flight. हाँ। थोड़ा सा बता दो। नहीं, प्रोसेस ईमानदारी की है, मेहनत का है, वो एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है। हाँ, exactly. 9-10 साल थिएटर किया हूँ और हमेशा सोचते रहता हूँ आर्ट को लेके कि कैसे ये मेरे मन में 15 साल पहले ख्याल आया था कि मैं एक्टिंग को कैसे अप्रोच करूं कि वो एक्टिंग तो हो लेकिन एक्टिंग लगे नहीं। अब धीरे 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 थोड़ा बहुत अचीव कर रहा हूं, कभी कभी करता हूं, कभी कभी कि वो एक्टिंग हो रही है लेकिन एक्टिंग लगे नहीं। और अब थोड़ा सा मेरा थोड़ी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ, मैं कल अपनी पत्नी को रात में समझा रहा था कि नाट्य शास्त्र में अभिनय के 4 प्रकार हैं। तो मुझे लगा कि ये जानती होंगी, ये बोली मैं नहीं जानती हूँ। बोले अरे, फिर मुझे लगा कि यार एक्टर तो मैं हूँ ना, तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक्टिंग के जो 4 प्रकार हैं नाट्य शास्त्र में, पता आप में सब जानते हैं, यहाँ बता दो। चलिए एक्टिंग की ही क्लास हो जाए, मज़ा आएगा। वैसे या हो सकता है कुछ लोग जानते भी हों। नाट्य शास्त्र में पंचम वेद का दर्जा दिया गया है। तो असुर मानते थे कलाकारों को, नाटक वालों को, तो एक अलग वेद कर दिया। तो उसमें 4 प्रकार है। एक है आंगिक, जिसमें बॉडी मूवमेंट और बॉडी के पोस्चर जेस्चर की जरूरत होती है। दूसरा है वाचिक, जो हमारा स्पीच होता है, जो बोलते हैं। तीसरा है आहार्य, आहार्य मतलब कॉस्ट्यूम। और चौथा है सात्विक, आप तो जानती हैं, मैं आप सबको बता रहा हूं। तो सात्विक सबसे मुश्किल काम है। सात्विक जहां पे ज्यादा सत्व की, ट्रूथ की, इमोशंस की जरूरत है, जिसमें आंगिक में हमारे पास एक इक्विपमेंट है, हमारा शरीर, कि इसको हम आड़ा टेढ़ा बना देंगे। आहार्य में हमारे पास कपड़े हैं। वाचिक में हमारे पास भगवान ने वोकल कॉर्ड दिया है, स्पीच दिया है, भाषा दी है। सत्व के लिए, सात्विक के लिए हमको ईश्वर ने जो दी है उसको रिक्रिएट करना बहुत मुश्किल है। न चाहते हुए रोना, हमारे जीवन में खुशी चल रही है, सीन में रोना है। हमारा जीवन एक्सट्रीमली हैप्पी है, बहुत अच्छा पैसा भी मिल रहा है। अब जिस आदमी को खूब कमाई हो, आज दिन भर, बोले अब आपको रोना है, कितना मुश्किल है। बोले क्यों रोऊंगा, मेरा तो अच्छा चल रहा है आज का दिन। तो हमें, और कई बार घर में कोई चिंता है, परेशानी है, दुख है, और सीन में हमें हंसना है। तो हम तो खैर एक्टिंग के 4 प्रकार हैं, बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। तो सात्विक टफ काम है, और सात्विक के लिए लंबा वक्त लगता है। वो जब अभिनेता 40 साल के ऊपर जाता है तब थोड़ी थोड़ी समझ आती है, जो अब मुझे समझ आ रही है। और 1-2 साल बाद आप लोगों को उस समझ का परिणाम दिखेगा किसी न किसी फिल्म में। जरूर दिखेगा, और ऑलरेडी दिख रहा है। मैं एक और ऑफ स्क्रिप्ट बात कहना चाहूँगी। मैं आपके साथ यहाँ बैठी हुई हूँ, आपको बहुत ही गौर से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, और उससे ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी को फील कर रही हूँ। एंड आई थिंक योर बिगेस्ट strength and mahirta is that your energy is pure and it's got a very correct vibrational frequency, and that is why I feel as an actor you can adapt to so many different characters so effortlessly, क्योंकि आपकी energy बहुत pure और untampered है। जी जी, मैम एक्टिंग एक ऐसा खेल है ना जिसमें, जैसे बैडमिंटन में 2 प्लेयर होते हैं ना, एक इधर एक उधर, और दोनों का टारगेट होता है कौन किसको हरा दे। एक्टिंग एक लौता खेल है जिसमें 2 प्लेयर खेलते हैं, कोई किसी को हराता नहीं है। दोनों का टारगेट होता है खेल अच्छा बना दे, कंटेंट को डिलीवर कर दे ऑडियंस तक। जी। तो इसीलिए आप मेरे साथ किसी भी एक्टर को देखेंगे किसी भी सीन में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते दिखेगा। जी जी, I've seen that। क्योंकि वो मैं खिलाड़ी उसको बना लेता हूँ जी, और उसको पता भी कई बार नहीं चलता है।
तो हम लोग दोनों एक स्तर पे आके खेल लेते हैं। आपने बहुत सारा खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है माही के साथ और बाजी के साथ। कुछ सिखाया इन्होंने आपको क्रिकेट के बारे में, या आपने उनको एक्टिंग के बारे में सिखाया? नहीं, मैंने तो क्रिकेट के बारे में उन लोगों ने बहुत सिखाया है। Really? अच्छा। हाँ, कपिल सर हम लोगों को वर्कशॉप में थे धर्मशाला में, और वो बहुत अच्छे मिमिक करते हैं। उनका आप लोग अभी आएंगे, मिमिक कराए उनसे? अरे उनसे कोई किस्सा सुनवाइएगा, उनसे पक्का। बोलिएगा कोई किस्सा, इतना बढ़िया नरेट करते हैं, हम लोग हंस के गिर जाते थे। कमाल एक्टर हैं वो। तो उनकी कहानियां बहुत अद्भुत होती हैं। हम लोग धर्मशाला में एक रात सुन रहे थे और हंस के गिर गए थे। पर आपने एक्टिंग सिखाई होगी पक्का? नहीं, मैं नहीं? ना कभी नहीं। अच्छा मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ SRMB? सबसे जो बढ़िया जो एक चीज है SRMB के बारे में, ब्रांड के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपकी जो जर्नी रही है उनके साथ, इस जर्नी में आपने क्या ऑब्जर्व किया है? सबसे बढ़िया चीज? सबसे बढ़िया चीज है कि अभी बिहार में बहुत प्रेजेंस बढ़ रहा है मेरे स्टेट में। तो बहुत सारे वो गंगा नदी के ब्रिज बनने वाले हैं SRMB स्टील से, जिससे होकर मैं अपने गांव जाऊंगा। Put your hands together for him. I told you he's real. चूंकि हमारे पास समय कम है, क्योंकि आपको फ्लाइट लेनी है, मैं छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड कर दूं इनके साथ, and then we'll open the house for questions for all of you if you have some questions. Yeah. So रैपिड फायर ट्राई करते हैं हम लोग, हाँ, अच्छा वाला, टीवी वाला नहीं। So 3 words to describe yourself. मैं अपने को जी। बड़ा मुश्किल होता है खुद को डिस्क्राइब करना, कि बहुत अच्छा बोलो तो भी लगता है कि अपनी तारीफ करने लगा, बुरा बोलने में करिए ना, कोई बात नहीं। कुछ नहीं। अब क्या डिस्क्राइब करना, 15 मिनट में तो डिस्क्राइब हो ही चुका हूं मैं। चलिए क्या हम लोग कहते हैं, 1 word from you. चलिए 1 word. मैं सहज, बस सहज। सहज। हाँ, और क्या बोलूं, बस सहज ही काफी है, उसमें बहुत कुछ है। सहज, हाँ, सहज में एक्चुअली बहुत कुछ है। सहज इज द फाउंडेशन फॉर एवरीथिंग। ओके, अगर मैं आपको एक टाइम मशीन दूं और कहूं कि आप टेलीपोर्ट हो सकते हो बैक इन टाइम, तो हिस्ट्री की किस ईरा में जाना चाहेंगे और क्या आप होना चाहेंगे? मैं जब भी लिच्छवी से गुजरता हूँ, वैशाली में लिच्छवी एक जगह है जहाँ कहते हैं डेमोक्रेसी की शुरुआत वहां से हुई थी, वैशाली में। तो वो रुइंस बचे हुए हैं, तो उनको देख के मैं बहुत, मुझे लगता है कि यार उस एरा में अगर जाके देखें कि कौन लोग थे जो इतने प्रोग्रेसिव थे और डेमोक्रेसी के बारे में सोचा था कई हजार साल पहले। भारत लिच्छवी वैशाली में, तो मैं वहीं जाऊंगा। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि आप सुपर हीरो बन सकते हैं, तो कौन सा सुपर हीरो बनना चाहेंगे? मैं बजरंग बली। अरे वो ना टिकट लेना, कुछ करना, जहां मन वहां चल दिए। हम सपने में सब उड़ते हैं, तो एक मौका मिले रियल लाइफ में उड़ने का, तो मैं बजरंग बली बनना। रियल लाइफ में आप बने ना बने, आई होप अगर कभी रामायण फिर बने बड़े पर्दे पे, तो आपको बजरंग बली का रोल दिया जाए और आप बखूबी निभाएंगे, आई एम क्वाइट श्योर ऑफ इट। आप टेक्स्ट सबसे ज्यादा किसको करते हैं? खाने को। टेक्स्ट क्या? टेक्स्ट व्हाट्सएप सबसे ज्यादा किसको? टेक्स्ट, हाँ वो टेक्स्ट हमको सुनाई दिया। टेक्स्ट किसको? सब मैं अपनी पत्नी को ही करता हूँ, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है। अच्छा, व्हाट्सएप नहीं है, हाँ, तो SMS ही करता हूँ। SMS करते हैं। तो आप यहाँ बैठी हैं इसलिए कह रही है, या वैसे भी यही है? नहीं, मैं जिसको भी कर सहज। SMS के सिवाय कुछ। ओके, आपका लास्ट गूगल सर्च क्या था आज? आज द क्लब से एयरपोर्ट कितनी देर में पहुंचूंगा? अभी किया, गेट के बाहर किया था, 24 मिनट 30 मिनट दिखाया था। और आपका लास्ट क्वेश्चन, गो टू कैरियोके गाना कौन सा है? नहीं, मैं ये वो सब नहीं करता। फंस नहीं रहे, देखा मैं जमाने वाली थी। नहीं, ओके, चलिए, द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। हम सिर्फ 3 क्वेश्चंस लेंगे, जल्दी से पुट योर हैंड अप एंड आई विल सेंड यू अ माइक। हाँ जी सर, आपका सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा है आपके इलस्ट्रियस करियर में? जी, गुड़गांव करके एक फिल्म थी, नेटफ्लिक्स पे है और आई थिंक और अमेजोन पे भी है शायद, गुड़गांव। वो थोड़ा मुश्किल फिल्म था, वो कैरेक्टर मुश्किल, क्योंकि बहुत ग्रे था, बहुत कॉम्प्लेक्स था, और मैं जीवन में सहज हूँ, तो मैं जीवन में मैंने कॉम्प्लेक्स का उतना अनुभव नहीं किया है, लगभग ना के बराबर किया है।
तो उसको रिक्रिएट करना मुश्किल था क्योंकि उसके रेफरेंस मेरे पास नहीं थे पर्सनल, तो इसलिए मुश्किल था वो। You got your answer? What is your good name, please? अभय जी, thank you for your question. एक और सवाल पूछना चाहेंगे जल्दी से? आपका जिंदगी में सबसे कठिन फेज कौन सा रहा है और आप कैसे उससे बाहर आए? जी। कठिन फेज तो अब खोजना पड़ता है कौन सा रहा है, मुझे सच में याद नहीं, क्योंकि मैं कठिनाई में भी बहुत, मुझे पता नहीं था कि मेरा कठिन वक्त चल रहा है। पता होता तो मैं कठिन मतलब समझता, मुझे तो ठीक ही था, जीवन ठीक ही चल रहा था। पर अब लोग सवाल करते हैं तो लगता है कि मैं बहुत कठिनाई से गुजरा हूँ क्या। Okay, I've read a quote of his somewhere where he's spoken about struggle in a very unaffected manner. मुझे अब वो quote याद नहीं आ रहा आपका। कुछ हफ्तों पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें आपने स्ट्रगल के बारे में कुछ कहा था, और कैसे कि स्ट्रगल ने आपको बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं किया. You don't even feel it's a struggle. हाँ, कुछ he said something about it. बहुत प्रवचन करता हूँ मैं असल में जब हम मुंबई में शुरुआत ट्राई कर रहे थे, बहुत बड़ा शहर है, जब परसों मैं आ रहा था अलीबाग से बोट के थ्रू रोरो से, तो मुझे दूर से सिटी का स्काई लाइन दिखा, बम्बई का, वो बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट और टाउन वाला इलाका. तो मुझे लगा यार बहुत बड़ा शहर है, इस शहर में हम एक गांव से एक दिन ट्रेन पकड़ के आ गए थे और ये सोच के कि अभिनेता बनूंगा, और बन गया. तो मुझे लगा, दूर से सिटी को देखा, आउटलाइन वो इवनिंग में तो एहसास हुआ. मेरी पत्नी स्कूल में पढ़ाती थी यहाँ गोरेगांव के विद्यालय में. एक बाइक थी जो आज भी है मेरे पास, अभी भी चलती है, उसको संभाल के रखा हूँ. तो जीवन ठीक था, तो मुझे कभी पता नहीं चला कि कुछ खराब चल रहा है. जब आपने वो स्काईलाइन देखी तो आपने नहीं बोला मन में आई गॉट यू? नहीं, वो फिल्मों में होता है ना कि मुंबई का किंग कौन, ये सब. वो सिर्फ मन में थॉट आया था कि यार ये सिटी सच में बड़ा है, 2-2.5 करोड़ की आबादी में एक लड़का आता है ट्रेन पकड़ के, ग्रैटिट्यूड, और कि अभिनेता बनना है. मैं तो बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. ये अद्भुत सिटी है, कमाल की जगह है ये. बिल्कुल, हम भी ये बात मानते हैं. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन आई हैव गॉट माय सिग्नल टू रैप इट अप. एनीबॉडी, वन लास्ट क्वेश्चन? अब में से किसी के पास कोई सवाल नहीं है? ये मंत्र मुग्ध हो चुके. यस मैम, प्लीज. हाँ सर, थैंक यू. द माइक टू द लेडी देयर, प्लीज. कोई बात नहीं कनिका, हम पहुंच जाएंगे, तनाव मत लो. मैं गजानन भाई फ्रॉम एफकॉन्स. सर आपसे ये इस एंगल से ये क्वेश्चन, ये ब्रांड यूएसपी, ये ब्रांड आइडेंटिटी, तो मैंने सब लिखा, बड़ी मेहनत करी है कपिल सर की. वो स्क्रिप्ट उठा के ऐसे अपने डस्टबिन में डाल दी, बिकॉज ही टुक ओवर द स्टेज एंड आई एम टेलिंग यू, वो स्क्रिप्ट से हमको शायद इतना सा मजा आता, पर जो इनके ड्राइव से हमें मजा आया, इट वाज फिनोमिनल. सो एवरीबॉडी, दिस कन्वर्सेशन इज गोइंग टू बी yet another great one with the legend, the one and the only, the inimitable Kapil Dev. जी जी. हाँ, करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आशीष ने. मैं सोच रही थी क्या पूछूंगी इनसे, क्या मैं आप प्लान करना, बस मैजिक ही होएगा and he will do it himself. Kapil sir, first of all, it's an honor to talk to you. I'm talking very informally, but it is truly an honor, and I value these moments with you on stage. Back then, you gave India a new dream, and I think हम लोग आपको, we haven't thanked you enough. Until जब तक India रहेगा, we will continue thanking Kapil Dev. I think put your hands together, ladies and gentlemen. Sir, what are the values of SRMB जिनकी वजह से आप हमारे साथ जुड़े? सबसे पहले एक सीरियस सा सवाल मैं आपसे पूछूंगी. पहले नमस्ते, हेलो कुछ हो जाए. बिल्कुल सर, जो आप, मैंने कहा जो आप चाहें. आई एम फॉलोइंग यू. पता नहीं आते सारी बाउंसर मार है ना सर. अब इमेजिन मैं इनको बाउंसर. No, we come here for the good evening. That's Yes, more important. absolutely. And क्या कहा था मुझे? I think, well, Sara sab said very nicely. आदमी को वही काम करना चाहिए जिस चीज का उसको मालूम है. जी. तो आपने अभी बोला कि इतने साल पहले हमने एक फंक्शन किया था. I don't remember. No worries, sir. Because if I have remembered all these things, I would have been good student. So I wasn't a good student. I changed, start playing. सही में ऐसे ही हुआ था सर. Till today.
So a lot of people ask me so many things, what happened then, what happened. I said, I don't remember. I was just remember when Balsara Sahib was saying something, कि you should be good about what you know. I went for my heart checkup and this doctor said, you're 79% artery block, 69%. I said, okay. He said, क्या करना है? मैंने कहा, you come to my seat, I'll go to your seat. How do I know क्या करना है? It's not my field. I said, if I give you a cricket ball and say, this is 52 stitches, what does it make different to you? Nothing. I said, you are telling me about my heart, which I don't know. At least I have a heart. I said, do whatever you want to do. I don't know. If I had known, I would have been doctor. So sometimes we like to talk about other people, which I don't want to. And I just want to say, live your life, enjoy the moment, that's more important. Your question come back to that is being with them. I mean, I would say as a cricketer who stopped playing so many years back and still a part of any organization, you feel proud about that. I don't know if I can take their organization somewhere bigger than that. Marketing is important, which Balsara Sahib was saying, it's important. But I don't know how I will help them. But I'm sure they are helping me. Is that true, no? I mean, if I'm with them, they're paying me money. So one thing is for sure, they're helping me. Now, up to the marketing people how to use me, and I can help them. Yes, if you get involved with any brand, the most important is you must trust the people who are behind them. And as you know, from there I will take the topic. 40 years back, it wasn't like that. We didn't know how to brand ourselves. The American and European, they know how to do branding. हमारे क्या है, मेरा फोन नहीं है, ले लो कोई बात नहीं, मेरा नहीं है, अच्छा आपका भी नहीं है. So I always see a branding is very important, but we should give more emphasis on the quality rather than brand. That's my thought process. If today Tata's name is there, they have given the quality over the century. If you don't have a quality, you can go up to few steps, then you will collapse. So I always believe whichever thing you want to do must have a quality over anything else. Yes, branding is very important in our country, all over the world. Now, in last 15 years or 20 years, Indian people start recognizing that we want to be brand of the world, not India. And that gives you the strength. And for that, we have to get only one thing, is quality. And I feel very happy to be associated with them for so many years. Even though मैंने बड़ा इस बार request किया, हाथ जोड़ा, यार मेरे को जाने दो, बहुत हो गया, आपके पास बहुत नए लोग आ रहे हैं, let other people should be. They said, no, you are a family. So when you become, no, you are the family, then I feel happy, okay, after some time it's the relationship. But with relationship also, you have to produce the result, and that's why I'm here. Ji. And sir, I would like to add to what you just said, is that, of course, you gain from them, but it's not a small thing to be associated with the name of Kapil Dev, hai na Ashish? You're truly a man of steel, and koi choti moti baat nahi hai. So we are honored, we are delighted, and we are so happy to have you as a part of our family, sir. सर, ये जो आपका सफ़र रहा है SRMB के साथ, कुछ यादें ताज़ा करिए हमारे साथ, कुछ किस्से सुनाइए हमें, if you have any memories. No, I get involved with any brand. I want to know their strength, because we are cricketer, we are not expert, and we don't know much about
the world, because quality of our time we spend playing. We don't know nothing about that. Today also I was talking to Ashish and I said that what happened in Turkey, would it happen today also with this team? Is the knowledge. What I believe that for me, after stop playing cricket, is the knowledge is a strength, not anything else. So I was discussing today, yaar, itna bada hua earthquake, had today's steel and these things. He said, yes, a 50 years, 100 years old building will not have the technology what we have today. So these are the things what we talk. And I think so many things. I went with Ashish to Calcutta to see their factory, how they are doing. Because I personally feel if I get involved with any brand, I want to know the brand. Yes. I did some of the ads way back in 30 years back when I was not intelligent enough. I shouldn't have. If those brands come today, I wouldn't have done that. Okay. Because I feel soft drink is not right for people like us to do. It's to us, the youngster follow us, and we shouldn't do that. We should not take people on the wrong side. Other day, one company come out, tobacco company, he said, we want you to be our brand. I said, sure. He said, how much money? I said, 50 crore. So he said, that's not going to happen. I said, sure. That's why I said that. Why you said it. But if you give me 50 crore, I will pay 10 crore tax, 40 crore I will give it to the charity to make sure nobody touch that brand. So everybody has to learn and grow with the time. And there are sometimes we people who are famous do some of the advertisement which is not right. And the ethics should be there. That's what I learned over the period of time. So it is so graceful of you to, in a public space, to admit your learning and your growth. I mean, Kamal ki baat. I think we should put our hands together for him for being so honest. मैं आपसे एवोल्यूशन की बात ज़रूर करना चाहूँगी. एज ए क्रिकेटर भी आपने इवॉल्व किया फ्रॉम वन लेवल ऑफ द गेम टू द अदर, फ्रॉम अ नेशनल हीरो टू बिकमिंग अ ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकॉन. एंड अपने क्रिकेटिंग करियर के बाद आप और इवॉल्व हुए एज अ स्पीकर, एज एन एक्टर, एज अ ब्रांड एम्बेसडर. इतनी सारी कोई और चारा नहीं था. पेट भरना है ना, नहीं, कुछ ना कुछ तो सीखना होगा. कपिल सर, सब लोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वही तो कहा है कि you have to learn. Every day you should try to learn. The time you say you know everything, you're a dead. No. That is why I want to ask you, आपका process of evolution क्या रहा है? Because we also, Ashish, are evolving from a company that is based in one large region of the country. Now you'll be trying to go all across the country and then across the world, God willing and God bless. What has been your process of evolution, sir, as a human being? I think learning, again I will say only learning. You know, sometimes you become famous, everybody think he knows everything. And we don't know nothing. Honestly, we don't know nothing. But one thing is there, people like us have more opportunity to learn. Because we meet different kind of people, we talk to them and they are ready to talk. But you have to have a mind to, I want to learn more. More you learn, you become, what is the human being's strength? It's the knowledge. Knowledge is the biggest thing. And I like to learn more. Whenever I go to any function, I talk to people. When I step out of the room, I like to be little more knowledgeable. That's all my aim in life. It's not I know everything. In English phrase is, more you study, you come to know how illiterate you are. क्योंकि जितना आप पढ़ते हो फिर पता चलता है कि तो और कितना पढ़ने को है या सीखने को है. And that's my aim. जी जी बिल्कुल. ओके, कपिल सर यहाँ हैं तो थोड़े से मज़ेदार सवाल मैं पूछूंगी और उसके बाद मैं माइक आप सबको दे दूंगी बिकॉज आई थिंक ऑल ऑफ यू आर लाइक ईगर टू आस्क हिम क्वेश्चंस. सर थोड़ा सा रैपिड फायर करेंगे. वी विल हैव सम फन विद सम क्विक रैपिड फायर फन क्वेश्चंस विद योर परमिशन. नहीं पढ़ाई में अच्छा हूँ तो मत पूछो ऐसा. नहीं मैं आपसे कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का नाम नहीं पूछने वाली. मैं पूछने वाली हूँ 3 शब्द ऐसे जिससे आप अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं. 3 words to describe yourself.
quickly. I have only one word, Yes. live for the moment. This is the new theme I have picked up. Live for the moment. We never live for the moment. We here also walk into the room, take a photograph, and we are not here. We start sending the photograph to our groups, our friends, and you are not enjoying there. When you go there, you want to be here. So I'm not doing that. I like to live for the moment. I want to live now, this environment, because this will never come back. So I like to be here with them and want to be more enjoyable and want to live and enjoy the moment. That's my That's one, who you are today. only one thing. Wonderful. That's a great learning for all of us. If I had to use 3 words for him, I would use real, great, and uncomplicated. You know? Yeah, goes well. Okay. So if I give you a time machine and you would be able to teleport yourself, अब वापस हिस्ट्री में मैं आपको अगर कहूँ कि मैं भेज सकती हूँ, तो ऐसी कौन सी एरा में आप जाना चाहेंगे और क्या बनना होना चाहेंगे? स्कूल में। बस थोड़ा सा स्कूल तक ही जाएंगे। हाँ, क्योंकि वही एरा ऐसा था, कोई टेंशन नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था, माँ बाप को प्रेशर था, उनको फीस देनी थी, मेरे को तो आवारागर्दी करनी थी। सच्ची बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि वो। And if I say one thing I want to learn in my thing, I feel now I reach here, I should have been more educated. Bye, sir. I think you're fabulous. No, success in sports is not everything. Education is everything. Wow. Okay. So I feel, yaar, I wish I could also go to Harvard here. I can go to Cambridge. It's just feel how those people study. A lot of people want to be in my shoes. Yeah, hum bhi India ke liye khele, sure. But if you ask me one thing, I like to go back to study, to get the knowledge of the world, the growth of the world. That is what I like to learn. Oh, wonderful. So what a simple, noble thought and just wonderful thought. अगर मैं कहूँ कि आप एक दिन के लिए सुपर हीरो बन सकते हैं, तो कौन बनना चाहेंगे? मैं खुद ही जो सुपर हीरो। अपने आप में रहो और खुश रहो, वही काफी है। दूसरे के शूज में जाओ, पता नहीं चले कीले लगे वहां पर। So I'm happy whatever I am. I never like to be in anybody's shoes. No, God is kind. Everybody in this country want to play cricket, and I played for India, and I become a captain. What more you want? Yes. So I think you should be satisfied. Contentment is very, very important. I am content. The people who played the game, and some of the players, you go to their home, all the photographs and trophies are lying there. In my house, not one single photograph of cricket, because I move on. I don't want to remain in my days when I got the fame. No. Then my growth will stop. I said no. I ask all the people are sitting, how many people you kept your school or college photograph on the wall? Very ekadi hogi. And everybody said, I said, same with me. Cricket was my school and college, and I passed with the flying colors. I don't want to go back. I don't want to see those photographs. I want to grow. When you see your photographs, some of the cricketers, some of the film star and some of the artists, they keep putting their photograph in their own house. और मैं कहता हूँ, grow हो जाओ यार, यही देख के सारी उम्र बड़े रहोगे. You have to grow, you have to come out of that. And that's my thought process. And that's another learning for us. वैसे मेरी इंटेलिजेंस देखिए, मैं सुपर हीरो से पूछ रही हूँ कि वो कौन सा सुपर हीरो बनना चाहेंगे. Anyway, आपने ईश्वर की बात करी, गॉड की बात करी. अगर मैं कहूँ कि ऑलमाइटी विल गिव यू वन बून टुडे, वो कौन सा बून? एक चीज आपको भगवान आज दे देंगे, जो भी आप मांगेंगे, वो ऐसी कौन सी चीज है जो आप उनसे आज मांगना चाहेंगे? Good health. Good health. Period. और मेरा दिमाग ठीक रहे. जी, absolutely. दिमाग is very, very important. दिमाग को खराब होते ज़्यादा वक्त नहीं लगता. So भगवान से अगर कुछ मांगना है, अच्छी हेल्थ और ठीक दिमाग रखे, क्योंकि फेमस होते ही दिमाग सबसे ज़्यादा जल्दी खराब होता है. So I just wish
keep me there. And we wish the same also. सर आप सबसे ज़्यादा टेक्स्ट किसको करते हैं? WhatsApp या SMS सबसे ज़्यादा किसको करते हैं? अब तो बंद कर दिया है. किसको करते थे? नहीं, I don't like to do too much. पहले बहुत होता था, नया जब आप होता है ना तो आपको बहुत शौक होता है. अब तो सैटरडे संडे गोल्फ खेलता हूँ तो फोन भी बैग में रख देता हूँ, नहीं 6 घंटे उठाना. एंड कभी कभी वाइफ थोड़ा अपसेट हो जाती है, हमने मैसेज किया था आपने जवाब नहीं दिया. I said, यार hello, let me enjoy myself. My golf. So I start living myself. Throughout my life, I live for other people. Now I live for myself. जी. I enjoy myself. जी. And that's what the learning is all about. अच्छा, लास्ट गूगल सर्च आपने क्या किया? गूगल पे क्या सर्च किया लास्ट? थोड़ा बहुत अर्थक्वेक के बारे में किया था, because this was a very new thing, and the bird didn't sleep whole night, and they were chirping, and they are, all the animal was making a noise before the earthquake. So you're learning. So that's what I come to know, why it happened, how it happened. This was little bit again. I'm not very intelligent, but if you ask me, that's what I try to since morning or last few days. Only that thing in my mind. It's on your mind. It's disturbing you. सर वो एक शब्द हमें बताएं जिसको प्रोनाउंस करने में आपको बड़ी मुश्किल होती है. एक शब्द. भगवान. भगवान को प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है. बिल्कुल सर. Wonderful. I think I want to clap for him. Come on. And lastly, आपका go to karaoke favorite song कौन सा है जो आप गुनगुनाते हैं, गाते हैं? जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. क्या हम कपिल देव से कह सकते हैं कि वो ये लाइन हमारे लिए गुनगुनाए? क्या हम कह सकते हैं? अगर आप लोग तालियां बजाएंगे तो आगे चलो. So that was the final question of the rapid fire round. I'm going to open the house for questions. चलो भाई शुरू हो जाओ. Yes sir. Give him the mic. सर गोल्फ में ज्यादा मजा आता है या क्रिकेट में ज्यादा मजा आता था? वो वही बता सकता है जिसने 2 शादी की हो. 2 शादी की. Yes sir, your question. थोड़ा हंसना चाहिए ना, मजे के लिए आए हैं ना. बिल्कुल सर, absolutely. तो मेरे को किसी ने पूछा, आज ही किसी ने पूछा कि आप जब क्रिकेट खेलते थे आपको बैटिंग पसंद था या बॉलिंग पसंद था या क्या था. तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कितने बच्चे हैं? शी सेड 3. ऐसे कौन सा वाला सबसे अच्छा है? जब आप क्रिकेट खेलते हो तो ये थोड़ा कह सकते हैं मुझे बैटिंग अच्छा है, बॉलिंग अच्छा. क्रिकेट ही अच्छा है, और फैमिली में सब बच्चे अच्छे हैं. कोई आप किसी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. ये ओके, एक मिनट सर. Please, go ahead, sir. Mom, I'll call you later. She died long back, so sometimes she call, I answer. जी sir. Yes. We all know, all of us from our childhood, success. We all know your success. Be it cricketer, be it corporator, be it as a human being. With your own experience, what are those factors? Well, we know it is a hard work. People only would know the front end of it. In the back end, there are a lot of hardships one faces. According to you, what are those lacking not only as a cricketer, but as a general factor that you think are... I think you have to be honest with yourself. That is the key for sports people, we say. You don't have to practice to show somebody. When you're honest to yourself, the result will be better. But often we become and reach at that level where we are not honest to ourselves. If you start being honest to yourself, it's a beautiful place to live. True that. Yes, please. आप सिर्फ हाथ मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई शरारतें नहीं की हैं, बहुत की हैं, बट ऑनेस्टी वेरी इंपॉर्टेंट. की है तो बोल दो ना. 1-2 शरारतें बता ही दो ना. नहीं, मैं बताता हूँ कि छोटे होते हैं ना, जब आप फेमस हो जाते हो ऐसा लगता है कि आपने कोई शरारत ही नहीं की, ऐसा इंप्रेशन देते हैं. मैंने तो सब शरारतें की हैं. मैंने तो लड़कियों को
आप खड़े हो तो मैं सीटी बजा देता हूँ। अरे वाह सर। ऐसा कुछ नहीं है, हमने सब कुछ किया जो लड़के करते हैं, बट यू बिकम अ फेमस, यू ट्राई टू अवॉइड दैट कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। हमने लोगों के अमरूद भी तोड़े हैं, हमने सीटियां भी बजाई हैं, स्कूल से भाग के मूवीज भी देखी हैं, सब काम किए जो एक लड़का करता है जी। एंड दैट इज व्हाई यू आर कपिल देव सर। एक क्वेश्चन बाद में, एक तो सर कुछ किस्से सुना दीजिए ना। पंकज अभी यही कह के गए, पंकज त्रिपाठी, कि आप इतने किस्से सुनाया करते थे व्हेन यू वर इन टनब्रिज वेल्स, व्हेन ही वाज एक्टिंग इन 83, कि वो लोग हंस हंस के कुर्सी से गिर जाया करते थे। सो एंड जितने मैंने आपके साथ शोज किए हैं, आपने हमेशा किस्से, आज कुछ हो जाए सर फ्रॉम योर मेमोरी। आई मीन यू आर डिलाइटफुल, प्लीज गो फॉर इट। इतना मजा आता है आपको सुन के। कुछ नहीं है कि आप जब फेमस हो जाते हो ना, अपने किस्से छुपाने शुरू कर देते हो। किस्से सबके होते हैं, कुछ आदमी और कह रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे हो। हमारे में इंग्लैंड में खेलने गए, हमें समझ ही नहीं आती थी वो बोल क्या रहे हैं, नहीं एक्सेंट समझ आता था। तो एक ने बोला गुड मॉर्निंग, दूसरा बोलता है डजंट मैटर, तो हमें समझ ही नहीं आया क्या है। ऐसे किस्से बहुत हुए, बट फिर हम छुपाते हैं, नहीं आई डिडंट सेड। सो आई रीच टू ऑस्ट्रेलिया एंड पहले तो वैसे ही कमजोर थे पढ़ाई में, समझ आती नहीं थी। जो थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखी वो इंग्लिश मूवी देख के सीखे, बाकी कुछ समझ नहीं आता था। आजकल के तो बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, इनको सब पता है। हम गए वहां पर, पर्थ में उतरे, इट्स अ वेल नोन, आई ऑलरेडी सेड बिफोर, पर्थ में उतरे, उनका एक्सेंट ही इतना अलग था। और मैं अभी कॉलेज पास करके खेलने गया ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम, एंड वो ऑस्ट्रेलियन ने बोल दिया, उस समय बस नहीं होती थी टीम की कि यू ट्रैवल इन अ बस, यू ट्रैवल फ्रॉम होटल टू द ग्राउंड इन ए टैक्सी। अपने अपने किट बैग लिए, मैनेजर आपको $5 देता था, फ्रॉम होटल टू दैट प्लेस इज $5, आप टैक्सी में जाओ, उधर से अपने खेलोगे। तो अब मैं जूनियर था तो मैं उसके आगे बैठ गया, मेरे 2 प्लेयर सीनियर थे, वो पीछे बैठे हुए थे सीट पर टैक्सी में। तो टैक्सी मैन वाज वेरी क्यूरियस, वांट टू नो दैट, सो यू कम हियर टू डाई? आई सेड नो, आई कम हियर टू लिव। अब वो पूछ रहे टू डाई, मैंने कहा इनके पास लिली थॉमसन तेज गेंदबाज हैं, ये डरा रहा है मुझे। एंड एज ए यंग किड, तो पीछे से मेरा सीनियर बोलता है, नो ही इज सेइंग हैव यू कम हियर टुडे? सो मैं समझा टू डाई, टू मरने के लिए आए हो इधर क्या? उसको मैं ट्रांसलेशन किया जो उसने पूछा हिंदी पंजाबी में। फिर मैंने कहा यार मैं कौन सा डरता हूं इनसे, आई कम हियर टू प्ले, वी आर नॉट अफ्रेड। बट those are the things happen. So many things happen like that, which come to the dressing room and then we laugh. When do we laugh most is in the cricket. जिस दिन बरसात होती है, मैच कुछ हो गया खत्म और कुछ करने को है नहीं, फिर स्टोरियां आती थी। अगर आज भी आप मुझसे पूछो डू आई मिस क्रिकेट, नो, बट आई मिस ड्रेसिंग रूम। वो दोस्तों के साथ जो समय था ना, I do miss that, but not miss the cricket, because I was satisfied cricketer when I walk out of that. And the most important thing I said to myself, I said I will not go back to the cricket ground until unless the cricket board asks me. छोड़े हुए 30 सालों के मैं कभी नहीं गया। I feel you should leave with the grace and don't come back there. Yes, absolutely. Sir, I'm very curious about this before they ask you a question. जब 83 बनी, how were you? कैसा लगा आपको? I mean, really, it was such a great tribute to you, the film. हाँ, मुझे पता है आपने कहा कि ये पूरी विक्ट्री के बारे में थी, but eventually we all know that it was about. No, it's not for. Really, but that's what I felt when I saw it. I don't agree. Nobody can win World Cup alone. Of course. Even Sachin or Dhoni or you can say Vivian Richard, course. you win It's with the teamwork. team, and that's the most important thing. And I would say, yes, we played good cricket, and the difference was only that. When we went there, before that, they never had an idea we can do that.
And perhaps I come from a different background, come from a farming background, so your thought process is different. Never give up. And that's the only thing my job was to tell the team. यार खेलने से पहले तो हार नहीं सकते ना. So I often says that कि अगर शेर आपके सामने आ जाए और अगर आपने हार मान ली तो मर गए ना. लड़के मरेंगे, हार के तो हार गए. So that's the only thing I changed. But I think this movie was great in a sense. When they come to us, we said only among ourselves. I said one thing is, we are not going to sit in a group and tell the stories. I said, let individual person should talk to them. Let them pick the story. Okay. If we are as a group, some people are storyteller and they can express better. Some people can be quiet. But if everybody tell the story, let them then make the story. And that's what it happened. It wasn't not story told by me. It's said by everybody. I given my side of the story. And that's why I thought I love this movie, because it's not on us. I think it was on team. Yes, sir. And that's your grace, and there we go again. Your grace, but leadership is always important, and we all saw what your leadership did. Hanji, aapne, you had raised your hand, sir. Yes. Can we have the mic to the gentleman there in the middle table? Mujiye, sir. Kapil sir, namaste. I'm feeling very happy to see you. Last time I saw you, it was in another age altogether. It was probably 1983 time, and it was in Barwadi Stadium in Odisha. And now I'm seeing you in person. It was almost about 30-40 years. Sir, about leadership, what I would say, in our life, in my life, when we are down in the dumps, I usually think, how would Kapil Dev make a strategy to come out from the difficult times and overcome the obstacles. And I always go back to thinking in that style. So, can you please share some of your leadership point or the critical points that you would actually call back to overcome a crisis? I think one thing I'll tell you very simple. Every leader has his own way to reach on top. There is not one method. If there is a one method, then everybody will reach there. You have to take the circumstances and situation. What do you have? And only thing I would say that, what science says, I don't say that, never give up. Science says if you are 70% burn, 70% burn, and you have will to live, you will not die. And if you are 30% burn and you have no will, you will die straight away. So my job was to tell my team, yeah, will to win. That approach what we require. I understand British people ruled us for so many years, 200, 300 years. We are very complex people. I think now the next generation is much more. And we were the middle of that, to ready to take head on, which my father couldn't take it, because he born during that period. So that was the difference. Now we are not afraid of people. In last 15 years, we've become much more stronger. We realize we have the strength, we have the knowledge, and that's what we did. Reaching on top, I think basic is one thing. You have to work like a team to win anything. When you play golf or tennis, that's an individual. When you play as a team, you have to depend on everybody, not on yourself. The time you depend only on yourself, I don't think so we can win. That's my mantra for our leadership. Magic words, sir. Thank you. Thank you for your question. And I can see you're overwhelmed of that you're seeing him again, and I understand that.
emotion. All of us feel overwhelmed every time we see him. Anji, next question. Aye, yes sir. Mic to this table, please. नमस्ते सर. देखिए खड़े मत हो जाइए, मेरे को शर्म आएगी, बैठ जाइए. मैं खड़ा हो जाता हूँ ऐसे तो. अभी तक आपको कोई लाइफ में रिग्रेट है आज तक? जी है, मैंने पढ़ाई नहीं की. मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ऐसा नहीं, बाकी कोई रिग्रेट नहीं है. Because I feel that during the time I was in school, college, my mind wasn't there. I was dyslexia people. तो उस समय dyslexia का मतलब भी नहीं पता था. और जब पता चला तो फिर याद आया कि इसलिए टीचर हमें बहुत मारते थे, क्योंकि हमारे टाइम में स्पेलिंग बहुत इम्पोर्टेंट थे, नंबर्स बहुत इम्पोर्टेंट थे, और जिसको डिसलेक्सिया होता है उसके कभी स्पेलिंग ठीक हो ही नहीं सकते. और उस समय कोई ऐसा मेथड भी नहीं था कि यू कैन टेल देम इसको डिसलेक्सिया है. सो आई वाज दैट टाइम, आई मिस दैट. आई विश उस समय पता होता. I would have then done much better in life. I'm not regretting, but you asked me that, I still believe that. Thank you for your question and thank you for your answer, sir. Anji sir, आपका question. Sir ji namaste. 175 not out against Zimbabwe. How was that? कहाँ पर पढ़ाई की है? कहाँ पढ़े हो आप? मुंबई में. क्या किया आपने? इंजीनियरिंग किया. हाँ? इंजीनियरिंग किया. इंजीनियरिंग किया. कौन से साल में? 86. 86 में उस दिन क्या खाया था? नहीं याद ना. तो मेरे को कैसे याद होगा? एक बात सुनो, 40 साल पुराना अगर मेरे को याद होता तो मैं कहीं कोई नहीं बोल सकता. नो इंडियन कैन फॉरगेट दैट. ये बहुत अच्छा लगता है कि मेरी सक्सेस आप एंजॉय कर रहे हो. पर अगर आप बोलो मुझे याद एवरीथिंग, नो. एक्सीडेंट याद रहते हैं जिंदगी में. वन थिंग रिमेंबर, अगर एक्सीडेंट आपको 10 साल की उम्र में भी आपने देखे ना, बड़ा एक्सीडेंट, कोई छत से गिर गया कुछ, वो सारी उम्र याद रहेगा. आप मेरे से पूछ रहे हो कि वो 175, हाँ वो एक बड़ी इनिंग थी, बट मेरे को याद कम है. जो देख रहे थे उनको ज्यादा है. There are two type of people. That changed the fortune of our country. ना, there is two type of people. एक कहानी बनाते हैं, एक सुनाते हैं. मुझे सुनानी नहीं आती. नहीं आती. अगर याद होता, क्योंकि वो देख रहे थे, उनके लिए कहानी थी. I was middle of that. मेरे लिए कहानी नहीं थी. मैं अपनी जान बचा रहा था. ऐसा ही होता है ना. When you are struggling, क्या होता है कि 175 जिस दिन बने, जब 17 पे 5 हो जाए तो आपको एक ही चीज याद आती है. एक ही चीज, भगवान. भगवान आज बचा दे. मेरे ख्याल से आपकी और मदन लाल की बहुत बड़ी पारी हुई थी. सबकी. देखो वो टीम में साथ होगा तो भगवान बचा ले, भगवान बचा ले, आज बचा ले. क्योंकि उस समय इसलिए भगवान को याद करते हैं. यू नैरो डाउन योर कॉन्सेंट्रेशन. उसको पुल करते हो कि ध्यान कहीं और ना जाए. भगवान के पास आप तभी जाते हो, या गॉड या अल्लाह या जीसस, उसी टाइम जाते हो जब आपको अपनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी होती है. तो उस समय यही था, आज बचा लो, आज बचा लो. तो जब बच गए तो फिर आज इनकी पिटाई करो. ये हालत थी. पहले बचा लो फिर पिटाई करो. Okay, we have time for 2 more questions. हाँ जी, बोलिए सर, आप पूछे. And इनके बाद फिर if there's somebody, oh yes, Ashish, of course. Sir, good evening. My question to you is, what could be the Guru mantra for being so humble and grounded as you are? And what is that doesn't make you, the success go up in your head? Means because we have been seeing you for ages, I don't think, or rather everybody would agree that you are the way what you were, all across. I don't know how to explain that. The humble was, I won't use that humbleness, ki I'm humble. I think that's the way I grow. And when you grow in a joint family, वहाँ थप्पड़ जल्दी पड़ जाता है.
आजकल के तो आप माँ बाप थप्पड़ भी नहीं मार सकते। नहीं मार सकते सर। पुलिस बुला लेगी। हमारे पहले थप्पड़ पड़ जाता था तो गलत हो। तो क्या है कि वो सिखाते हैं, जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, वो बहुत अच्छी चीज है कि वो आपको जल्दी सिखा दे कि ये गलत है। तो शायद कुछ हमने अपने घर से सीखा कि ऐसा रहना चाहिए। और दूसरा ये कि हम्बल नहीं, इट्स द वे यू आर। You should be close to what you are, and that's how you make friends in life. And if you try to put on, क्योंकि दूसरे आदमी इतने बेवकूफ नहीं है। For the kind of fame and popularity that he has. Okay, everyone, please put your hands together and welcome for the wonderful Kapil Dev Pankaj. And welcome Sam also in the house. So, Ashish, thank you very much for inviting me to speak. Hello, Kapil. Everyone is waiting for you to listen to you, not to me, so I think I'll be very brief. I don't know how many years, but I think a large number of years. SRMB was, I think, relatively a small company when we started. Our clients have been, and they have grown with us. So, as I was sitting here and thinking of, I couldn't help think of India way back in the early days, and I thought of Jamshedji Tata, I thought of steel. I think you could only think of Tata. I think India has been, fortunate that we had quite a few sort of established the foundation for a strong India. But I think what India has needed subsequently and what India needs, that is how I think of SRMB. I think thanks to the dynamism of this brings to the rest of India, I'm sure, and soon to many other countries, I'm sure it's going to sort of do a world of good to SRMB, and it will become, Ashish, it is indeed a very, very competitive world, the world of branding and advertising. I think very advertising market is going to cross 1 lakh crores. So to operate in it, it's not for the faint-hearted. Ask me for advice, and for any other entrepreneurs in this room, that would be my humble advice. Call us with his. Thank you, sir. Thank you very much for those words, and thank you very much for your presence. We're delighted. Everybody put your hands together. I've introduced him many a time on many a forum, and every time it's just such a pleasure, really. He is, of course, we all know the wisdom Indian cricketer of the century, Padma Shri, Padma Bhushan. NDTV proclaimed him as one of the 25 living legends of India, greatest all-rounder we've had, and the most popular cricketer. But I think, sir, good evening, namaste, and please join us on stage. Ashish, I request you to please welcome him with a bouquet, a token of her affection. Are you coming, sir? Ladies and gentlemen, Kapil Dev in the house! Swagat, very warm welcome. And all of us at SRMB are delighted that you're a part of our family. The little kissa, sir. तो उनको पता चलता है। मैं अक्सर कहता हूँ एक ही चीज, I said all the stars in my country whom I follow and I love them, they made us proud. I said जब ये कुछ नहीं थे ना, सबसे आगे आते थे मेरी फोटो ले लो, और जब कुछ बन जाते हैं मुंह छुपाते रहते हैं। आज भी मेरे साथ बाउंसर था, मैं उसको बोलता था यार लोग प्यार कर रहे हैं मेरे आगे, क्यों, उनको देखने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। So don't change from reality. And that's the only thing. It's not humble. That's how you've grown up, and that's what you learn. You don't forget your basic way you come from. अब put on तो बहुत easy है,
उसको तो कोई नहीं. But to remain what you are, where you come from, is give you the strength. And that one should remain like that. हाँ जी, one last, हाँ जी, आशीष आपका सवाल. More than a question is the answer and a life learning, Paji, that in this almost 1.5 decade of association with him, there is a lot of learning personally for me and as a group. One question which has cut through a lot of our conferences and Paji has answered, and I would request Paji to also answer for the audience today. Because of this corporate world of competition and pressure, how do you handle it? This is a common question, and I really, I would say there's a learning that answer that he always replies. Paji, I would request if you can just enlighten the audience today on this. ऐसा I don't know आपके मन में क्या सोच रहे हो और मैं क्या सोच रहा हूँ, पर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ कभी-कभी सहमत नहीं होता एज ए स्पोर्ट्समैन. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बड़ा कॉमन वर्ड आता है प्लान ए, a plan B, a plan C. This is a very common word. हम कहते हैं कि नहीं, there should be only plan A. जब आप प्लान B पे जाते हो तो आप वीक हो जाते हो. You change your target. When plan B to C, you're much more weaker. So stick to one plan. जब हम क्रिकेट ग्राउंड में जाते हैं, एक ही प्लान है, मैच जीतना है. तो इसलिए always keep one plan which is realistically right. Don't fool around with your company कि ये हो सकता है, ये हमने करना है. और जब ये अमेरिकन वर्ड आ जाते हैं ना, कॉर्पोरेट में प्लान ए एंड प्लान बी, I said no, ये गलत है. We should stick to our plan. We may not reach there, but we will come close to that plan. That's my thought process. So मैं कभी भी जाता हूँ कॉर्पोरेट में लेक्चर देने तो यही कहता हूँ, never change your plan halfway through. अगर हम फुटबॉल कर रहे हैं, गोल ही चेंज करते रहोगे तो गोल क्या करोगे? एक ही प्लान होना चाहिए ना. उसके लिए you give more than 100%. There is no plan B in my life. If I am here, my plan is how I can get education from you people. And only way I can be more educated tomorrow if you ask me the right question. And that's my thought process. आज चाहे मुकेश अंबानी है या टाटास हैं, if they think they know everything, no. चाहे वो मोदी साहब हैं, ये सीखने का जो है दस्तूर, ये हमें हमेशा रखना चाहिए. और जिस दिन डूबना है, सीखना बंद कर दो, आप डूब जाओगे. That's the only thing I have. Well said, sir. Thank you so. अब मैं जा सकता हूँ सतगुरु की जगह. हंसना बहुत जरूरी है भाई. Enjoyment is very, very important. कि I'm not saying I'm something like that. I always say, please live for the moment. Enjoy this moment. It's the most beautiful. And second thing I say to that, कि I, in last 30, 40 years, never said I'm not lucky. I never say. Last 2 years, gone through a rough time. Everybody is cribbing. I'm not lucky, I've gone through rough time. And I said last 2 years was the most enjoyable year and good for me. Two things. One, I learned more. How to polish my shoes, how to clean my clothes, how to clean my car, how to make food. COVID me. That's one thing I'm learning. And the second most important thing is I'm alive. Absolutely. A lot of close ones are dead. So are you lucky or not? Yes. You are lucky. And top of that, you are sitting in this room. You are 1% of those people in the country, top 1%, who get a chance to come to places like that. Not even 1% people come to 5-star hotel and enjoy the evening or have a meal, and you are on that 1%. If you are still not happy, you don't deserve to sit here. Be happy whatever you have.
1% लोगों में अगर मैं आता हूँ अपनी कंट्री में, I should be happy now. And I have to tell God, thank you, you've given me such a life. But if you're still unhappy, then you reach anywhere, you will be unhappy. And that's the way the life is. Wow. That's life knowledge from one and only Kapil. अब चाय कॉफी भी पिला दो यार. बिल्कुल सर, आप जो कहें, we will be most delighted. उसने सुन लिया, देखा, कहते हैं he's a smart guy, he heard that यार कॉफी ला ली है. No, thank you very much, Ashish, to you and to the entire family. And I want to say, as a person, I want your growth will be the most beautiful. The way you're working, carry on, and we believe that if you are sincere in your work, you will touch the world somewhere where other people not. Great to associate with you, and you are part of my success also. Thank you very much. Thank you, sir. And Ashish, with your permission, can I have a photograph with him? सबसे फेवरेट जहां मैं रन बनाता था और जहां विकेट लेता था. लॉर्ड्स में रन नहीं बनाए तो फेवरेट नहीं हो सकता. फेवरेट वही होता है जहां आपकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी हो. आपके अलावा हाँ, आपके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन कौन है? मेरे अलावा फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन. Keep on changing. Keep on changing. If you have only one person whom you follow, that when your growth stopped. When I met my hero, sit down, I'll just explain. When I met my hero, he said to me, Kapil, you want to take a photograph? I said, no. He said, then? I said, I'd like to spend 5 minutes with you to talk to you. I said, photograph will be the main here. What we are going to talk, that will give me the strength. Am I meeting my hero? Is he good enough or not? Not photograph. I didn't take photograph. But I remember each and every word, what he said to me. And then the hero keep on changing. First hero था मेरे स्कूल का head boy. वो कहीं भी घुस जाता था. I said, I like to be like him. Then my brother was my hero because he could do everything जो मैं नहीं कर पाता था वो कर लेता था. Then I traveled the world. Then I met cricketer G.R. Vishwanath. I said, यार क्या cricketer है, बड़ा है, human being. He became my hero. But hero keep on changing. Growth was taking within me. जिस दिन आपकी growth रुक गई ना, उस दिन आपके hero रुक गए. And that's the way my life is. So I always look up to who will be the next hero I can admire and say, he's the one. I don't know if I made an answer for you. Not your answer. Yeah, of course. Thank you. मेरे हीरो का नाम नहीं पूछोगे? करंट हीरो का नाम पूछ लीजिए. I was just joking. Hero इधर है मेरे, but sometime again I'll tell you the name of that. तो ये जो है जगह, ये मेरे दोस्त की है. 20 साल से बुला रहा था दिनेश कि आके देखना मिला, और आज आया हूँ तो अभी मिला नहीं है. मैं उसको पकड़ूंगा. What a wonderful place this is. It's really wonderful. Thank God we didn't go to any 5-star hotel. We come here. It's really, really nice. Beautiful to be here. Yes, absolutely. Thank you very much, sir. Once again, can I please request Kapil Dev Pankaj, your Executive Director, to render the vote of thanks. Kapil sir. मैं हवाई जहाज में चलिए क्लास में चलते हो.
सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, कोई भी ब्रांड से जुड़ने से पहले बहुत सोचना होता है, SRMB के साथ कैसे आपका जुड़ना हुआ? आई थिंक आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं सोचता था। अभी लगता है कि हाँ, जिस ब्रांड के साथ आप जुड़ो, आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा डिटेल उनके बारे में मालूम होना चाहिए। So I'm happy after almost more than a decade with them. I'm happy I'm associated with them. हमने आपकी अभी स्पीच में बहुत सारी बातें सुनी है जहाँ आपने कहा है कि सीखना हमेशा चाहिए, हर कुछ सीखने से कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। आज के ज़माने में सोशल मीडिया के थ्रू आप कितना कुछ चीज़ें सीख पाते हैं? नहीं, जहाँ ज़रूरत है आई थिंक आप सीख सकते हो, लेकिन अपने आप से सीखो, जो जहाँ पर आप रहते हो अपने लोगों के साथ सीखो। I think that's very important to me. I like to sit with old people, like to learn from them. आज एक ऐसा ज़माना आ गया है जहाँ पे सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं, फैमिली के साथ टाइम नहीं दे पाते। इस पर आपका क्या कहना है? उनके साथ भी कोई नहीं टाइम देगा। अगर आप अपनी फैमिली के साथ नहीं दोगे तो आपकी फैमिली भी आपके साथ टाइम नहीं देगी। आई थिंक वी हैव टू लर्न टू, हमारा जो कल्चर है, we have to be together. I respect people want to make their own life, husband, wife and kid. If you leave your parents one day, your kid will leave you. So I think balance is very, very important. And that goes to the woman more than a man. Women have to make a house and keep it together, the families. Tomorrow is the day of a love, which is called as a Valentine. But we have a love with any of our profession, whether it's sports, whether it's cinema. If we talk about your love, what it will be? Oh, love yourself. I think दूसरों को तो अलग है, पहले अपने से प्यार करना सीख जाओ. I think that's more important. And tomorrow you are saying every day is love day. Why we say only one particular day is a love day? It's a wrong. Every day is a love day. You're always an inspiration to all the youngsters. Will you like to say something to all the young generation, especially? No, just enjoy yourself. Be honest to yourself, and that's it. I'm not so much educated where I can tell them what to do, but love yourself. Be happy. That's important. Thank you. Thank you. So much. Just 2 questions. Rolling. So firstly, आज SRMB के बारे में जानना चाहेंगे, आप भी इससे जुड़े हुए हैं, कैसा रहा अनुभव? और ये लाइक आज जुड़ने के लिए तो पहले प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ जानना होता है, कैसे आपने हाँ बोला? नहीं, बिल्कुल, मैं बहुत जांच परख करके, मैं जिस भी प्रोडक्ट से जुड़ता हूँ तो बहुत जांच परख करके जुड़ता हूँ। SRMB कलकत्ता की कंपनी है, मेरा वहाँ खुद ससुराल है, आना जाना है। महेंद्र सिंह धोनी, मतलब माही जी और कपिल सर जुड़े हुए हैं, माधुरी दीक्षित जी जुड़ी हुई हैं, तो मेरे लिए और भी था। SRBM, आशीष जी प्लस कंपनी, तो जो मेरा ट्रस्ट है या भरोसा है, इनोवेशन है, वो कंपनी की भी वैसी ही पॉलिसी है, इसलिए मैं जुड़ा हूँ। जैसे कि 23 की शुरुआत हो चुकी है, 2023, लोग ये भी जानना चाहेंगे कि पंकज सर क्या कुछ सरप्राइज इन सभी को देंगे, क्योंकि बहुत से इस साल आपके फैंस हैं, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे। जी, इस साल बहुत सरप्राइज आने वाला है। हर एज ग्रुप के लिए 6-7 फिल्में आने वाली हैं, जो बहुत अच्छी कहानियाँ हैं सबकी सब। एक कोई कहानी अगर आप थोड़ा बहुत अगर हिंट दे सकें तो? अभी एक महीने बाद ट्रेलर का इंतजार करो, हिंट मिलते रहेगा। 6-7 हिंट मिलने वाले हैं। कल वैलेंटाइंस डे है, साथ ही आज आपकी धर्मपत्नी भी आई है, कुछ हाँ। अगर उस समय की अगर थोड़ी बहुत बातें बताएं। उनको आज बुके दे दिया ना, SRBM ने मुझे दिया, मैंने उनको दे दिया। थैंक यू दोस्त, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। ले लो विजुअल्स, ले लो साथ में। Wonderful.